السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک چینل سے جڑے نہیں ہیں، وہ اگر چاہتے ہیں کہ پیارے ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی سچی خبریں بے خوف بے باک انداز میں اگر وہ دیکھنا اور سننا چاہتے ہیں تو اس چینل سے جڑ جائیں۔ جڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ نیچے لال کلر میں سبسکرائب لکھا ہوگا، اسے ٹچ کر دیں۔ اس کے ٹچ کرتے ہی وہ سفید ہو جائے گا اور رائٹ سائڈ میں ایک بیل، ایک گھنٹی بن کر آئے گی، اس کو ٹچ کر دیں۔ گھنٹی کے ٹچ کرنے کے بعد 3 آپشن آئیں گے، اس میں پہلا آپشن آل کا رہے گا، اسے بھی ٹچ کر دیں۔ یہ تینوں کام کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ چینل کے ساتھ جڑ جائیں گے اور ہماری ہر خبر، ہر ویڈیو آپ کو آپ کے موبائل پر مل جایا کرے گی۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز یہ اپیل کرتے ہیں کہ پلیز اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے بے باک چینل، ظلم کے خلاف بولنے والے چینل، مسلمانوں کے چینل ترقی کرے، مضبوط ہو، تو پلیز آپ سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ چینل چلانے کے لیے بڑا روپیہ پیسہ لگتا ہے۔ آپ چینل کی ہر ہفتے 200، 500، 1000 جو بھی مدد کر سکتے ہیں، اللہ نے جو بھی آپ کو دیا ہے چینل کی مالی مدد کرے۔ اسکرین پر آپ دیکھیں چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی آئے گا۔ ایسے ہی اگر آپ آن لائن بھیجنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم کا نمبر ہے 9923223361۔ یہ جو نمبر اسکرین پر دیکھ رہا ہے، آپ اس نمبر پر آن لائن بھی آپ مدد کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اس وقت ایک بڑی خبر ریاست مہاراشٹر کے ممبئی شہر سے آئی ہے۔ ممبئی میونسپل کارپوریشن نے ایک نیا آرڈر، ایک نیا حکم نامہ آدیش جاری کیا ہے۔ جی ہاں، وہ آدیش یہ ہے کہ جو بھی گاؤں سے ممبئی آئیں گے ان کو 14 دنوں تک کوارنٹائن لازمی ہوگا۔ یعنی جو بہار کے، اتر پردیش کے، باہر کے جو بھی لوگ ممبئی میں کام کرتے ہیں وہ اب ممبئی پہنچیں گے 5 مہینے کے بعد۔ جو بھی اب ممبئی آئیں گے تو آنے کے بعد ممبئی میں انہیں 14 دن تک کوارنٹائن کیا جائے گا۔ بہار پولیس نے میونسپل کارپوریشن ممبئی پر یہ الزام لگایا تھا کہ وہ ایک ایسے افسر کو کوارنٹائن کیا ہے جو اداکار سشانت سنگھ راجپوت کے خودکشی کیس کی تحقیقات کرنے آیا تھا۔ اس معاملے کے بعد میونسپل کارپوریشن نے سخت موقف اختیار کیا۔ کارپوریشن نے کورونا کے پس منظر ممبئی آنے والے اب تمام لوگوں کو 14 دنوں تک کوارنٹائن میں رہنے کو لازمی قرار دیا اور اس حکم نامے میں سرکاری افسران کو بھی کوئی راحت نہیں دی گئی۔ یعنی آپ اگر اعلیٰ ادھیکاری ہے، سرکاری افسر بھی ہے، تو بھی آپ کو 14 دن کوارنٹائن میں رہنا ہوگا۔ ناظرین، اس وقت بڑی خبر یہ بھی آ رہی ہے، گزشتہ کل ہم نے بتایا تھا آپ کو، اب وہی خبر ہے کہ جو اس پیارے ملک میں جو ٹی وی چینلز زہر اگلتے ہیں لگاتار اور ہندو مسلمانوں میں نفرت پیدا کرنے کی پوری سازشیں کرتے رہتے ہیں، ایسے چینلوں کے خلاف جمعیت علماء ہند نے سپریم کورٹ میں عرضی داخل کی تھی۔ گزشتہ کل اس کی سماعت عمل میں آئی، جس کے دوران عدالت میں مرکزی حکومت نے حلف نامہ داخل کرتے ہوئے جمعیت علماء ہند کی عرضی کو خارج کیے جانے کی درخواست کی اور کہا کہ میڈیا کو خبریں نشر کرنے کی آزادی ہے، جبکہ نیوز براڈ کاسٹ ایسوسی ایشن نے بھی حلف نامہ داخل کرتے ہوئے عدالت کو بتایا کہ عرض گزار کو سپریم کورٹ سے شکایت کرنے سے پہلے اس کے سامنے مبینہ فیک نیوز چینلز کی شکایت کرنی چاہیے تھی۔ اگر وہ اس پر کارروائی نہیں کرتے تب انہیں عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے تھا۔ اسی درمیان پریس کونسل آف انڈیا کی جانب سے پیش ہوئے سینئر ایڈوکیٹ نے کہا کہ ہم نے 50 ایسے معاملات کو نوٹس لیا اور اس کی جانچ ہو رہی ہے اور جلد اس پر فیصلہ جاری کریں گے۔ خیر، جمعیت علماء ہند ان زہریلی میڈیا کے خلاف کیس لڑنے کا پورا موڈ ہی نہیں، تیاری کر لی ہے اور جمعیت علماء ہند کی عرضی پر چیف جسٹس نے ایکسپرٹ باڈی کی رائے طلب کی۔ اب خبر ہے کہ سماعت 2 ہفتے کے لیے آگے بڑھا دی گئی ہے۔ کمنٹ باکس میں آپ ہمیں ضرور بتائیں کہ کیا جمعیت علماء ہند ان زہریلے میڈیا والوں کے خلاف، چینلوں کے خلاف جو قدم اٹھا رہی ہے، کیا یہ قدم صحیح ہے اور کیا آپ اس معاملے میں جمعیت کا ساتھ دیں گے؟ کمنٹ باکس میں ضرور لکھ کر آپ بتائیں۔
नाज़रीन, इस वक्त एक बड़ी खबर फिर मेरी निगाहों के सामने आई है। जी हाँ, आपको मालूम होगा कि वंदे भारत मिशन के तहत जो वंदे भारत मिशन शुरू किया गया, फॉरेन में जो लोग हैं भारत के कोरोना और लॉकडाउन की वजह से वहाँ अटक गए थे, फिर उनको लाने का काम शुरू किया गया। ये अलग बात है कि उनसे कितना किराया लिया गया और कैसी यूँ समझिए कि उनको तकलीफ़ें हो रही है। कुछ लोगों ने हमें बताया है कि 4 गुना किराया भी हमको देना पड़ा है और बड़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा है। तो खैर, वंदे भारत मिशन के तहत जो फ्लाइट्स यहाँ से रवाना की गई थी या वहाँ से लोगों को लाया जा रहा था, अभी खबर आई है कि केरल में एक प्लेन का हादसा हुआ। दुबई से कोझिकोड वो प्लेन आ रहा था कि लैंडिंग के दरमियान रनवे से फिसलकर 30 फीट गहरी खाई में जा गिरा, जिसमें तकरीबन बताया जा रहा है कि एयर इंडिया का ये तैयारा था वंदे भारत मिशन के तहत मुत्तहदा अरब इमारात में फंसे भारतीयों को लेकर दुबई से कोझिकोड आ रहा था। इस तैयारे में 174 मुसाफिर सवार थे, जिसमें पायलट समेत अब 5 लोगों के हलाक होने की मौत की तस्दीक हुई है। नाज़रीन, फिल्म इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, बड़ी अफसोसनाक खबरें लगातार सामने आ रही है। भोजपुरी एक अदाकारा है अनुपमा पाठक, उन्होंने भी आत्महत्या कर ली, खुदकुशी कर ली। और मैं आपको बता दूं कि सुशांत सिंह राजपूत समेत अब गुज़िश्ता ये 2 महीने में फिल्म इंडस्ट्री में खुदकुशी की ये चौथी वारदात है। इंक्वायरी शुरू हो गई है। फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों की खुदकुशी करने की अब चौथी वारदात 2 महीनों में सामने आई। मिली खबरों के मुताबिक भोजपुरी फिल्मों की अदाकारा 40 साल अदाकारा अनुपमा पाठक ने अपने फ्लैट में गले में फंदा डालकर खुदकुशी कर ली। इत्तला मिलते ही मकामी पुलिस जगह पर पहुंच गई और पूरा मुआयना किया। पुलिस ने लाश का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया है। खैर नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि जो दुनिया बड़ी चमक दमक वाली कहलाती है, जहां पर जाने का गोया कि लोगों का सपना होता है, उस सपनों की दुनिया में, उस चमकीली दुनिया में, उस चमक दमक की दुनिया में क्या चल रहा है और कितने लोग दुखी और तकलीफ में हैं वहां काम करने वाले, अंदाजा आप 2 महीने की इन 4 आत्महत्या और खुदकुशी के वाकयात से लगा सकते हैं। आइए नाज़रीन, बात करते हैं कोरोना को लेकर के इस वक्त हमारे मुल्क में कोरोना का मामला क्या चल रहा है, कोरोना की खैरियत क्या है। जी हाँ, अभी खैर बड़ी खबर इस वक्त आई है कि कोविड-19 वैक्सीन, कोरोना की वैक्सीन के तौर पर एक खबर आई है कि 225 रुपये में कोरोना की फ़ी खुराक वैक्सीन मिलेगी। कोरोना वायरस के 10 करोड़ खुराक की तैयारी और कम व दरमियाना आमदनी वाले मुल्कों में अगले साल इसकी डिलीवरी बनाने के लिए गावी और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने अपने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ मुआहदा किया है, बताया जा रहा है। और गुज़िश्ता कल से ये भी खबर चल रही है कि कोरोना की वैक्सीन आ गई है, कोरोना की वैक्सीन आ गई है। और अब मेरी निगाहों के सामने ये खबर है कि 225 रुपये में फ़ी खुराक वैक्सीन दी जाएगी। और ये भी कहा जा रहा है कि कोरोना के हर एक टीके की कीमत ज़्यादा से ज़्यादा $3 मुतय्यन की गई है और इसे अभी 92 मुल्कों में दस्तयाब कराया जाएगा। वहीं पर कोरोना को लेकर रियासत महाराष्ट्र का एक ज़िला है नांदेड़ से ये खबर आई है कि नांदेड़ में कोरोना बिल्कुल तेज़ी से बढ़ गया और अब वहां पर तादाद 3000 के पार पहुंच गई है कोरोना मरीजों की। और गुज़िश्ता 24 घंटों में 182 नए मरीजों का इजाफा हुआ है। वहीं पर कोरोना को लेकर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से बड़ी खबर आई है कि सहारनपुर के IPS समेत तकरीबन 59 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जी हां, IPS अफसर समेत 59 लोगों में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। वहीं पर बिहार में तो यूं समझिए कि धमाका हो गया कोरोना का कहर। जी हां, एक दिन में बिहार में 3646 नए मरीज सामने आए हैं। इस तरह से रियासत बिहार में अब कोरोना इन्फेक्शन के मजमूई मामले बढ़कर बिहार में 71,794 के करीब पहुंच गए हैं। लेकिन लगातार राहुल गांधी कोरोना को लेकर भी और चीन की दरअंदाजी को लेकर भी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और भाजपा पर निशाना साध रहे हैं। इस वक्त बड़ी खबर आई है कि कोरोना पर राहुल ने फिर मोदी को निशाना बनाते हुए कहा कि ट्वीट करते हुए कहा कि 20 लाख
के पार आंकड़ा पहुंच गया है, मगर मोदी सरकार गायब है। भारत में कोरोना इन्फेक्शन के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और मोदी हुकूमत की कोई भी पॉलिसी काम करती हुई नजर नहीं आ रही है। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि राहुल जी, आप ये कह रहे हैं कि मोदी जी कोई काम करते हुए नजर नहीं आ रहे। मोदी जी इस वक्त फिलहाल राम मंदिर की तामीर में व्यस्त है और बड़े बड़े काम कर रहे हैं। ये कोरोना से लोग मरते हैं, मरते रहेंगे, पूरा मुल्क कोरोना की वजह से मर जाए, उससे क्या फर्क पड़ता है। मोदी जी तो काम में लगे हुए। 5 अगस्त को उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। नाज़रीन, इस वक्त उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आई है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के जहन की गंदगी और घटियापन इस वक्त फिर सामने आया है। जी हाँ, राम मंदिर के तामीर के लिए संग बुनियाद रखे जाने के बाद इंटरव्यू के दौरान योगी आदित्यनाथ ने यह कहा, साफ लफ्जों में कहा कि वो मस्जिद की तामीर के लिए संग बुनियाद की तकरीब में कोई प्रोग्राम होगा, मस्जिद की तामीर का तो वो उसमें शिरकत नहीं करेंगे। उनके इस बयान पर, उनके इस घटिया बयान पर अपोजिशन का सख्त रिएक्शन सामने आ रहा है और अपोजिशन कह रही है कि योगी आदित्यनाथ सिर्फ हिंदुओं के नहीं, सबके वजीर आला है। जैसे मोदी सिर्फ हिंदुओं के पीएम नहीं है। यह अलग बात है कि वो यूं समझिए कि एक खास समाज को के लिए कोई काम नहीं करते हुए नजर आते, मगर हिंदुओं के पीएम नहीं है, सबके पीएम है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के वजीर आला को यह नहीं भूलना चाहिए कि हलफ जब उन्होंने लिया था, जब शपथ लिया था, तो उस वक्त उन्होंने हिंदुओं के सीएम करके शपथ नहीं लिया था, वो सबके वजीर आला है। इसलिए अपोजिशन और कई लोग अब डिमांड कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को अपने इस घटिया बयान पर माफी मांगनी चाहिए। लेकिन लोग कमेंट से भी कर रहे हैं कि भाई घटिया दिमाग से, घटिया जबान से वैसे ही बयानात आएंगे। मुसलमानों को या लोगों को योगी आदित्यनाथ से किसी अच्छे बयान की उम्मीद रखनी भी नहीं चाहिए, या मुसलमानों से मोहब्बत का कोई बयान देंगे। आपको इससे पहले भी मालूम होगा कि उन्होंने रोजा और इफ्तार पार्टी के ताल्लुक से भी बयान दिया था, तो लोग ये भी कमेंट कर रहे हैं कि ऐसे लोगों से अच्छी उम्मीद रखना भी नहीं चाहिए। 5 अगस्त को जो राम मंदिर भूमि पूजन का प्रोग्राम था, शिलान्यास का जो प्रोग्राम था, उसको लेकर मैं लगातार आपको खबरें बता रहा हूं। गुज़िश्ता कल मैंने आपको बताया कि मध्य प्रदेश के गोगावा में भी एक शख्स ने बदमाशी की, शरारत की और मुसलमानों के खिलाफ एक पोस्ट डाला। वहां की यूं समझिए कि ऐसा पोस्ट डाला जिससे पूरे इलाके में तनावपूर्ण माहौल बन गया और नफरतें फैल गई। मगर अफसोस ये कि उस घटिया शख्स पर डिपार्टमेंट एफआईआर दर्ज करने को तैयार नहीं है, जिसको लेकर गोगावा के मुसलमानों में काफी गुस्सा पाया जा रहा है। लेकिन ऐसी अब खबर एक उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से आई है कि भूमि पूजन, शिलान्यास जश्न की आड़ में फिरका परस्तों की शरअंगेजी का मामला सामने आया है। सुल्तानपुर में फिरका परस्तों ने फिरका वाराना फसाद भड़काने की कोशिश की। जी हाँ नाज़रीन, कहा जा रहा है कि बलवाइयों के एक हुजूम ने थाना कोतवाली देहात के तहत कस्बा हनुमानगंज बाजार में 5 अगस्त की शाम मगरिब और इशा की नमाज के दरमियान तकरीबन 8:30 बजे दफ़ा 144 के निफास के बावजूद इलाके के मुसलमानों को गाली गलौज और इस्लाम मुखालिफ नारेबाजी की और मस्जिद के पास जमा होकर आतिशबाजी की, जश्न मनाया, जज्बात भड़काकर फिरका वाराना फसाद बर्पा करने की भरपूर कोशिश की। पुलिस की यकतरफा और जानिबदाराना कार्रवाइयों और जिला इंतजामिया की मुतासिबाना और खामोशी के सिलसिले में जमीयत उलमा उत्तर प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी मौलाना महमूद मदनी ने रियासती इंतजामिया के आला हुक्काम और डीजीपी उत्तर प्रदेश को सुल्तानपुर जिले में रूनुमा वाक़यात व हालात से बाखबर किया। यानी ये तो हर जगह होता है, अक्सर आप यही सुनेंगे कि पुलिस एकतरफा कार्रवाई में लगी हुई थी। तो ये बदमाशी उत्तर प्रदेश में कोई नई बात नहीं, तो वहां पर भी पुलिस ने बदमाशी की कि एक तरफ फिरका वाराना फसाद भड़काने की कोशिश की जा रही थी हिंदुत्ववादी टोले की तरफ से, मगर पुलिस एकतरफा कार्रवाई, जानिबदाराना कार्रवाई और खामोश तमाशाई बनी हुई थी। जमीयत उलमा उत्तर प्रदेश ने इस मामले को लेकर यूं समझिए कि आवाज़ उठाई है। नाज़रीन, एक बड़ी खबर इस वक्त महाराष्ट्र से ये भी आई है कि महाराष्ट्र में बिजली बिल घोटाला हो रहा है। जी हाँ, बीजेपी के बहुत ही कदावर नेता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड यानी महावितरण रियासत की आवाम को, महाराष्ट्र की आवाम को लूट रही है। और उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दरमियान महाराष्ट्र सरकार का महकमे तवानाई महावितरण के जरिए बगैर मीटर रीडिंग के हजारों रुपये के
बिजली बिल जनता को भेजकर लूटने की साजिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर यूं समझिए कि उन्होंने कहा कि अगर 20% कटौती बिजली बिल में नहीं की जाती है तो बीजेपी के वर्कर्स मंत्रालय समेत बिजली कंपनियों का घेराव करेंगे। मैं आपको बता दूं कि हमारे शहर जलगांव में भी बिजली की लूट मार जबरदस्त शुरू है और लोगों को 20-20, 15-15, 25-25 हजार 4 महीने का बिल आया है। जी हाँ, जिन घरों का बिल यूं समझिए कि 600-700 रुपये महीना आता था उनको 15-15 हजार तक थमा दिया गया। यहां तक कि आपको ताज्जुब होगा कि हमारे यहां बीजेपी के एक बड़े कदआवर सीनियर नेता है एक नाथ राव खड़से, उनके घर का बिल 4 महीने का 1 लाख रुपए भेज दिया गया है, जिसको लेकर उन्होंने काफी नाराजगी का इजहार किया है। जितने भी ऐसे लोग, अब मैं आपसे कहूंगा कि जितने भी ऐसे लोग जिनके बिजली बिल ज्यादा आए हैं वो बकायदा यूं समझिए कि कानूनी तरीके से, संवैधानिक तरीके से आंदोलन करें और महावितरण को सबक सिखाएं। नाज़रीन, एक बड़ी खबर इस वक्त ये भी आई है कि चीन की घुसपैठ, चीन की दरअंदाजी से इस वक्त सूरत हाल जो है बहुत ही सेंसिटिव हो गई है, हसास हो गई है। जी हाँ, हकीकी कंट्रोल लाइन पर सख्त निगरानी और फौरी कार्रवाई की जरूरत है, वजारत दिफा का यह बयान आया है। लेकिन उनके बयान आने के बाद में लोग ये कह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी तो आपको लगातार बता रहा है लेकिन आप मानने को तैयार नहीं, नाक कट रही है आप लोगों की। मोदी जी झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं और अब यह खबर आ रही है कि वजारत दिफा ने भी अब हकीकी कंट्रोल लाइन पर सख्त निगरानी और फौरी कार्रवाई की जरूरत का बयान दिया है कि अब इस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। वजारत ने यह भी कहा कि इस तरह की सूरत हाल लंबे अरसे तक बनी रह सकती है। वजारत ने एक दस्तावेज में जून से मुतालिक अहम सरगर्मियों की मालूमात देते हुए कहा कि हकीकी कंट्रोल लाइन के नजदीक 5 मई के बाद से खुसूसी तौर पर वादी गलवान में चीन की घुसपैठ और तजावुजात बढ़ रही है। चीनी फौज ने हॉट स्प्रिंग इलाके में बाकायदा घुसपैठ किया है। दस्तावेज में गुज़िश्ता जून को दोनों मुल्कों के फौजियों के दरमियान हुई पुरतशद्दुद झड़प का भी जिक्र किया गया, जिसमें दोनों फरीक के फौजी हलाक हुए थे। इस झड़प में 20 हिंदुस्तानी फौजी शहीद हुए थे। खैर, चीन घुसता जा रहा है, लेकिन राहुल गांधी का कल भी मैंने आपको बयान बताया था कि वो मोदी जी से पूछ रहे हैं कि इस पर आपको झूठ बोलने में क्या फायदा मिल रहा है। तो जनता कह रही कि झूठ बोलने में यह फायदा मिल रहा है कि 56 इंच का सीना, नाक कट रही है। अगर वो ये कह दे कि चीन अंदर घुसा हुआ और हम लोग बाहर निकाल नहीं पाए तो नाक कट जाएगी, बड़ी बेइज्जती होगी। इसलिए सही हालत बताई नहीं जा रही। लेकिन अभी यह खबर वजारत दिफा के बयान के साथ आई है कि उन्होंने यह कहा है कि फौरी कार्रवाई की जरूरत है। नाज़रीन, आखिरी और बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने है जो केरला से आई है कि केरला में गुज़िश्ता 24 घंटों में बड़ी शिद्दत की बारिश हुई, जिसकी वजह से तोदा जो पहाड़ों के जो तोदे होते हैं वो खिसकने के वाकयात हुए हैं और 10 लोगों की मौत की खबर आई है और बताया जा रहा है कि 85 लोग अभी तक लापता है। रियासत केरला में लेडुक्की जिला के राजमाला में जुमा को शदीद बारिश हुई गुज़िश्ता कल, जिसकी वजह से तोदे खिसके हैं और 10 लोगों की मौत भी हुई है। इस दौरान 16 अफराद को बचाया गया है, 85 लोग अभी तक लापता है। ज़राए ने यह भी बताया कि जुमेरात की रात से इलाके में शदीद बारिश हो रही है, जिसके सबब मुनार में राजमाला में सुबह सुबह तकरीबन 4 बजे तोदा खिसकने का वाकया हुआ और 10 लोगों की लाश बरामद की गई है।